So, India has this huge ambition, right? To become the world's skill capital. The idea is to take its massive youth population and turn it into a workforce that's ready for any industry. But there's always been this gap between what you learn in a classroom and the actual skills you need on the job. Let's dive into how India's been trying to solve this puzzle for more than 60 years. All right, so what's the potential we're talking about? Get this. According to the 6th Economic Census, India should be training 20 lakh apprentices every single year. That's 2 million people getting real, hands-on, practical skills. It's a number that could totally reshape the economy. But what's the reality on the ground? Well, it's this, around 2.6 lakh. That's not a gap, that's a chasm. We have the potential for 2 million, but we're training just a tiny fraction of that. This is the big question we're going to unpack today. So what's going on here? Why this massive disconnect? Well, a huge part of the answer is buried in a piece of law that's, believe it or not, older than many of our parents, the Apprentices Act of 1961. Okay, so let's wind the clock back and look at the original blueprint. The 1961 Act was designed for a brand new industrializing India. The goal was pretty simple and smart. Use the machinery and know-how inside factories to create a steady stream of skilled workers. It was meant to be the foundation for building the entire nation's workforce. Now, the Act made a really important legal distinction. Under Section 18, an apprentice is officially a trainee, not a worker. And why is that such a big deal? Because it means most labor laws, things like Provident Fund, employee state insurance, the whole shebang, they just don't apply. This was a huge incentive for companies to take on learners without all the overhead of a regular employee. And this wasn't just some informal handshake deal. No way. It was a formal process. A legally binding contract had to be signed by both the company and the apprentice. That contract was then sent to a government-appointed official, an apprenticeship advisor, who would check it and register it. It created a clear official relationship with everything spelled out. The law also put some clear responsibilities on the employer. You couldn't just have your apprentices running errands and getting coffee. You were obligated to provide structured, practical, on-the-job training. You also had to make sure a qualified person was supervising them, follow all the safety rules from the Factories Act, and, of course, pay the apprentice a monthly stipend. Speaking of that stipend, it wasn't just some random number. The government set minimums based on your education level. So, for instance, a graduate apprentice had to be paid at least 9,000 rupees a month. A diploma holder would get 8,000, and so on. The idea was to give them at least some financial support while they were learning. So on paper, the blueprint looked pretty solid. It had clear rules, responsibilities, a formal process, but over the years, some major cracks started showing up in this foundation. And those cracks are what stopped the system from ever reaching that 2 million potential we talked about. Let's take a look at who's actually hiring apprentices. This chart shows the private sector is the biggest player, with almost half. But, and this is the key thing, given how gigantic India's private sector is, that number is actually really, really low. It points to a huge reluctance from companies to jump into this system. And why were they so reluctant? Well, this analysis from an International Labor Organization report really hits the nail on the head. A lot of companies just felt the rules and regulations were too demanding. The whole process felt too rigid, too bureaucratic, and it just scared them off. So, let's just quickly sum up the big roadblocks that emerged over time. First, the stipends, even though they were legally required, were often too low to really attract young talent. Second, the training programs for a lot of the jobs became seriously outdated. Third, tons of small and medium-sized businesses had no idea the law even existed. And the big one, those strict, inflexible government regulations that made the whole thing feel more like a chore than an opportunity. So, faced with all these cracks in the foundation, the government finally realized that the old blueprint needed a serious renovation. Starting about a decade ago, they began rolling out a series of reforms to try and drag the act into the 21st century. Here's a quick look at how that renovation played out. In 2014, a major amendment to the act was passed. That was followed up in 2019 with updated rules, and then in 2021, a whole new set of reforms were proposed to streamline things even more. Now, maybe the single biggest change they made was creating something called optional trades. The old system had these rigid, government-approved designated trades, mostly for manufacturing jobs. Optional trades was a total game changer. It lets employers create their own apprenticeship programs for pretty much any role they need, with a flexible curriculum.
This blew the doors wide open for India's huge service sector. And the modernizing didn't stop there. An online portal was set up to handle all the registration and paperwork, which was a huge relief. The penalty for not hiring enough apprentices was changed from the threat of jail time, to just a fine. And they now allow companies to hire third-party experts to manage their entire apprenticeship program for them, making it way easier to get involved. So these renovations aren't just random tweaks. They're a really important part of India's bigger mission to build a world-class workforce. Which brings us to the future of Skill India. This is the vision that's driving everything, the Skill India mission. The goal is incredibly ambitious, but it's clear: to use India's youth advantage to create a massive, super-skilled workforce that can compete with anyone, anywhere on the globe. And apprenticeships are seen as the bedrock of this whole vision. The latest proposals really show you how the thinking has evolved. We're talking about things like apprenticeship-embedded degrees, where getting on-the-job training becomes a core part of your university education. There are also new rules for online and virtual training, and even allowing Indian companies to send their apprentices overseas for training. This is all about blending education with the real-world global economy. And that brings us right back to that million apprentice question. The original 1961 blueprint had its flaws for sure, but it's been seriously renovated. The question now is whether this new, more flexible, more business-friendly plan can finally close that massive gap between what's possible and what's actually happening. Can it really help turn millions of young Indians into the skilled workforce of tomorrow? The framework is there, but now, the execution is everything. सोचिए जरा, सीखने और कमाने के बीच की दूरी अगर कम हो जाए तो? हाँ, खासकर भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में। जहां मौके तो बन रहे हैं, पर सवाल यह है कि क्या हमारे युवाओं के पास वो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं? बिल्कुल। और क्या हो अगर ये ट्रेनिंग, ये स्किलिंग सीधे काम की जगह पर ही मिले? यही आज हमारी बातचीत का फोकस है। भारत का शिक्षुता अधिनियम 1961 यानी अप्रेंटिसशिप्स एक्ट और उससे जुड़े नियम, खासतौर पर 1992 के नियम और जो बाद में बदलाव हुए। हाँ, ये वो कानूनी ढांचा है जो असल में देश में स्किल डेवलपमेंट और ऑन द जॉब ट्रेनिंग को एक दिशा देता है। और इसे समझने के लिए हमने काफी कुछ देखा है। कानून खुद, सरकारी रिपोर्ट्स, जो जरूरी संशोधन हुए जैसे 2014 और 2019 वाले, और अकादमिक रिसर्च भी। तो मतलब एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश है। जी, हमारा मकसद साफ है। ये सिस्टम काम कैसे करता है, कौन इसके दायरे में आता है, कंपनियों की क्या जिम्मेदारी है, और जो सीख रहे हैं मतलब जो अप्रेंटिस हैं उनके क्या अधिकार और कर्तव्य हैं, और हाँ, हाल में जो बड़े बदलाव हुए उनका क्या असर रहा, क्या चुनौतियां हैं और आगे क्या उम्मीदें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये एक्ट 1961 वाला आखिर लाया क्यों गया था? क्या सोच थी इसके पीछे? देखिए, इसका जो मूल मकसद था वो दोहरा था। एक तरफ उद्योगों को, इंडस्ट्री को उनकी जरूरत के हिसाब से स्किल्ड लोग मिले, अच्छा, और दूसरी तरफ युवाओं को रोजगार के लायक बनाया जाए, उन्हें वो हुनर दिया जाए जो इंडस्ट्री में काम तो आए। ये एक तरह से इंडस्ट्री और जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके बीच का गैप भरने जैसा होगा। बिल्कुल, काफी हद तक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कॉलेजों या ITI में पढ़ाया जा रहा है वो शायद इंडस्ट्री की उस वक्त की जरूरत से एकदम मेल नहीं खाता, या फिर काम करने का जो असल माहौल होता है फैक्ट्री में या ऑफिस में, बिल्कुल वो अनुभव अलग होता है। तो ये एक्ट उसी गैप को कम करने की कोशिश है, सीधे काम पर लगाकर सिखाना। ठीक है। अब इस कानून में कुछ खास शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे शिक्षु या अप्रेंटिस। आम भाषा में ये कौन है? शिक्षु मतलब अप्रेंटिस, वो है जो किसी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत ट्रेनिंग ले रहा है, एक तय समय के लिए। हाँ, एक निर्धारित अवधि के लिए। वो सीखने वाला है, ट्रेनी है। और ये ट्रेनिंग होती कहाँ है? ये प्रतिष्ठान या एस्टेब्लिशमेंट क्या चीज है? प्रतिष्ठान मतलब कोई भी जगह जहाँ कोई इंडस्ट्री या बिजनेस चल रहा है। वो फैक्ट्री हो सकती है, ऑफिस हो सकता है, कोई दुकान भी। और अगर उसकी कई ब्रांचेस हैं अलग अलग जगह? हाँ, वो सब भी प्रतिष्ठान में ही गिनी जाएंगी। पहले सरकार कुछ खास काम तय करती थी, ट्रेड तय करती थी, जिनमें ट्रेनिंग दी जा सकती थी। नामित ट्रेड या डेजिग्नेटेड ट्रेड कहते थे इन्हें। जी, जैसे फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, इस तरह के कई ट्रेड थे। लेकिन फिर 2014 में एक बड़ा बदलाव आया, वैकल्पिक ट्रेड या ऑप्शनल ट्रेड का कॉन्सेप्ट। ये क्यों अहम था? ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। इससे सिस्टम में काफी लचीलापन आया। कैसे? अब कंपनियां सिर्फ सरकार की बनाई लिस्ट पर ही निर्भर नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें किसी ऐसे स्किल के लिए लोग चाहिए जो लिस्ट में नहीं है, तो वो खुद का कोर्स बना सकती है। हाँ, वो अपनी जरूरत के हिसाब से NSQF के मानकों के अंदर रहते हुए अपना ट्रेनिंग कोर्स डिजाइन कर सकती हैं और उसमें अप्रेंटिस रख सकती हैं। ये NSQF क्या है, जरा संक्षेप में बताएंगे? NSQF मतलब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये एक तरह का राष्ट्रीय पैमाना है जो अलग अलग स्किल्स के लेवल तय करता है। अच्छा, इससे देश भर में स्किल की क्वालिटी और पहचान में एक रूपता आती है। तो वैकल्पिक ट्रेड भी इसी फ्रेमवर्क के तहत होने चाहिए। समझ गया। तो अभी बताइए कि कौन बन सकता है अप्रेंटिस? उम्र वगैरह की क्या शर्तें हैं? कम से कम उम्र 14 साल होनी चाहिए। और अधिकतम? अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रेड है
जो खतरनाक माना जाता है, तो उसके लिए न्यूनतम उम्र 18 साल है। पढ़ाई कितनी चाहिए? वो ट्रेड पर निर्भर करता है। किसी के लिए 8वीं पास, किसी के लिए 10वीं या 12वीं साइंस के साथ, किसी के लिए ITI सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा या डिग्री भी। और ये जो वैकल्पिक ट्रेड हैं उनके लिए कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है। हाँ, उसके कुछ तय मानक हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ ट्रेड्स में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी प्रावधान है, जैसे ड्राफ्ट्समैन या बुक बाइंडर जैसे कामों में। और आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया है। बिल्कुल, अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल है, उस पर रजिस्टर करना और आधार नंबर देना अब अनिवार्य है। ठीक है, अब आते हैं कंपनियों पर, मतलब नियोक्ताओं पर। किन कंपनियों को अप्रेंटिस रखना जरूरी है? ये नियम उन सभी कंपनियों या प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां 30 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। इसमें रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट वाले सब शामिल हैं। जी हाँ, कुल मिलाकर 30 से ज्यादा होने चाहिए। उनके लिए ये अनिवार्य है। कितना अनिवार्य? मतलब कितने अप्रेंटिस रखने पड़ते हैं? उन्हें अपने कुल वर्कफोर्स का 2.5% से लेकर 15% के बीच अप्रेंटिस रखने होते हैं। ये रेंज काफी बड़ी है, 2.5 से 15%। हाँ, इसमें सरकार समय समय पर निर्देश दे सकती है और इसमें भी एक हिस्सा फ्रेशर्स या स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए रखना होता है, कम से कम 5%। और वो कंपनियां जिनका साइज छोटा है, मान लीजिए 10-12 लोग हैं, अगर 4 से 29 कर्मचारी हैं, तो वो चाहें तो अप्रेंटिस रख सकते हैं। ये उनके लिए वैकल्पिक है, जरूरी नहीं। और 3 या उससे भी कम वाले? वो अप्रेंटिस नहीं रख सकते, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। चलिए अब भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझते हैं। कंपनी की यानी नियोक्ता की क्या मुख्य ड्यूटीज हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी ड्यूटी है ट्रेनिंग देना। किस तरह की ट्रेनिंग? जो भी उनका अप्रूव्ड प्रोग्राम है उसके हिसाब से काम पर ट्रेनिंग, जिसे OJT कहते हैं, और अगर जरूरत हो तो बेसिक ट्रेनिंग यानी BT की व्यवस्था करना। ये BT क्या है? थ्योरी जैसी? हाँ, इसमें कुछ थ्योरी और शुरुआती प्रैक्टिकल शामिल हो सकता है, खासकर फ्रेशर्स के लिए। ये कंपनी खुद भी दे सकती है या किसी मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग प्रोवाइडर से करवा सकती है, जिसे BTP कहते हैं। ट्रेनिंग के अलावा और क्या जिम्मेदारियां हैं? नियमों के हिसाब से तय न्यूनतम स्टाइपेंड देना, स्टाइपेंड? हाँ। अप्रेंटिस के साथ एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करना और उसे सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर या सूचित करना, उनका अटेंडेंस और प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखना। और सेफ्टी? बहुत जरूरी, उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण का ध्यान रखना। जो फैक्ट्री एक्ट के सेफ्टी नियम है वो अप्रेंटिस पर भी लागू होते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ आते हैं, अप्रेंटिस के क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य? अधिकार की बात करें तो सबसे पहला हक है सही ट्रेनिंग पाना, हाँ। तय स्टाइपेंड पाना, हफ्ते में 1 दिन आराम और बाकी कर्मचारियों की तरह छुट्टियां और अवकाश पाना, हाँ। और एक सुरक्षित माहौल में काम करने का अधिकार। और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? कंपनी के नियम मानना, अनुशासन रखना, लगन और नियमितता से सीखना, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है या टेस्ट है उनमें हिस्सा लेना। आपने स्टाइपेंड की बात की थी जी। ये कितना मिलता है? इसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं शायद हाल में? हाँ, इसमें बदलाव हुआ है। पहले क्या होता था कि ये राज्य में जो सेमी स्किल्ड वर्कर की मिनिमम वेज होती थी उसका 1% होता था। जैसे? पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे या चौथे साल 90%। अच्छा। लेकिन 2019 में से बदला गया। अब स्टाइपेंड को सीधे क्वालिफिकेशन से जोड़ दिया गया है। मतलब 8वीं, 10वीं, 12वीं पास के लिए अलग रेट, ITI या स्किल सर्टिफिकेट वालों के लिए अलग, डिप्लोमा वालों के लिए अलग और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अलग। ऐसा क्यों किया गया? ताकि थोड़ी स्पष्टता आए और क्वालिफिकेशन के हिसाब से स्टाइपेंड मिले। पहले थोड़ी गड़बड़ हो जाती थी। क्या कंपनियां इससे ज्यादा दे सकती हैं? हाँ, ये न्यूनतम दरें हैं। कंपनी चाहे तो इससे ज्यादा स्टाइपेंड दे सकती है। और क्या सरकार भी इसमें कुछ मदद करती है कंपनियों की स्टाइपेंड के बोझ को कम करने के लिए? हाँ, एक योजना है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना यानी NAPS। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसके तहत सरकार जो तय स्टाइपेंड है उसका 25% हिस्सा कंपनी को वापस देती है, रीइंबर्स करती है। लेकिन इसकी एक सीमा है। हाँ, अधिकतम 1500 रुपए प्रति महीना प्रति अप्रेंटिस। और जो बेसिक ट्रेनिंग का खर्च है वो भी सरकार देती है, अधिकतम 7500 रुपए तक। ये तो कंपनियों के लिए अच्छा प्रोत्साहन है। बिल्कुल है। अच्छा, काम के घंटे और छुट्टी के क्या नियम है इनके लिए? क्या वो रेगुलर कर्मचारियों जैसे ही होते हैं? देखिए, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ट्रेनिंग के घंटों समेत हफ्ते में 42 से 48 घंटे काम होता है शुरू में। और बाद में? तीसरे साल से या फिर जो ग्रेजुएट या टेक्नीशियन अप्रेंटिस है उनके लिए वही घंटे होते हैं जो उस डिपार्टमेंट के बाकी कर्मचारियों के होते हैं। अच्छा, कोई खास नियम 18 साल से कम उम्र वालों के लिए? हाँ, 18 साल से कम उम्र के अप्रेंटिस सिर्फ सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही काम कर सकते हैं, रात की शिफ्ट या बहुत सुबह नहीं। और छुट्टी, कैजुअल लीव, मेडिकल लीव? वो सब वैसे ही मिलती हैं जैसे उस कंपनी के बाकी कर्मचारियों को मिलती हैं, नियम समान है। अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है और बहुत जरूरी भी है। कानूनी तौर पर क्या एक अप्रेंटिस एक कर्मचारी है? व्हाट इज देयर लीगल स्टेटस? ये समझना बहुत बहुत जरूरी है और कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। एक्ट की धारा 18 ये कहती है कि अप्रेंटिस अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक प्रशिक्षु है यानी ट्रेनी है। वो कर्मचारी यानी वर्कर या वर्कमैन नहीं है। बिल्कुल सही, वो कर्मचारी नहीं है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ कंपनियों के लिए और अप्रेंटिस के लिए? इसका सीधा मतलब ये है कि जो ज्यादातर लेबर लॉज कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जैसे PF, ESI? हाँ, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, बोनस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट,
ये सब कानून अप्रेंटिस पे लागू नहीं होते। तो अगर कोई झगड़ा या विवाद होता है कंपनी और अप्रेंटिस के बीच, तो वो लेबर कोर्ट नहीं जा सकता? नहीं, क्योंकि वो कर्मचारी की परिभाषा में ही नहीं आता। इसलिए अप्रेंटिसशिप से जुड़ा विवाद एक औद्योगिक विवाद नहीं माना जाता। अच्छा, ये तो बड़ा पॉइंट है। हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट का एक फैसला भी है इस पर, जिसने ये बात साफ की थी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, कानून तो ठीक है, पर क्या असलियत में फैक्ट्री फ्लोर पर या ऑफिस में ये फर्क हमेशा बना रहता है? कई बार अप्रेंटिस लगभग कर्मचारी जैसा ही काम तो कर रहे होते हैं। ये एक व्यावहारिक चुनौती जरूर है। देखिए, कानून अपनी जगह है, पर जमीनी हकीकत में कई बार ये लाइन थोड़ी धुंधली हो सकती है, खासकर अगर ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर बहुत साफ ना हो। बिल्कुल। इसीलिए ये जरूरी है कि कंपनी और अप्रेंटिस दोनों को अपने अधिकार और अपनी सीमाएं पता हो। कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने कहा था कि सेफ्टी वाले कानून लागू होते हैं। हाँ, ये जरूर है। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 और कारखाना अधिनियम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के जो स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण से जुड़े प्रावधान हैं, वो अप्रेंटिस पर लागू होते हैं। जी हाँ, उनकी सेफ्टी सबसे पहले है। अगर काम के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो उन्हें मुआवजा पाने का हक है। ये जानना बहुत जरूरी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने बात की कि एक्ट कैसे बना, कौन आता है दायरे में, क्या जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इसमें समय के साथ सुधार भी हुए हैं। खासकर 2014 और 2019 के बदलावों की बात होती है। क्या थे वो बड़े बदलाव? हाँ, कई अहम सुधार हुए हैं। एक तो हमने पहले ही बात की, वैकल्पिक ट्रेड की शुरुआत। हाँ, जिससे कंपनियों को फ्लेक्सिबिलिटी मिली। बिल्कुल। आज लगभग 30% अप्रेंटिसशिप इन्हीं वैकल्पिक ट्रेडों में हो रही है। ये दिखाता है कि कितना सफल रहा। और वो जो नंबर तय करने का तरीका था वो भी बदला। हाँ, पहले हर ट्रेड के लिए अलग अलग अनुपात तय थे, जो काफी जटिल था। अब उसे आसान कर दिया गया है। कैसे? अब कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या के आधार पर एक परसेंटेज बैंड तय कर दिया है, 2.5% से 15%। ये ज्यादा सरल है। और क्या बड़े सुधार थे? दायरे को बढ़ाया गया। पहले ज्यादा फोकस इंजीनियरिंग ट्रेड्स पर था, अब गैर इंजीनियरिंग व्यवसायों को भी बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है। सजा के प्रावधानों में भी कुछ बदलाव हुआ? हाँ, पहले नियम न मानने पर जेल तक का प्रावधान था कुछ मामलों में, उसे हटाकर अब सिर्फ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मतलब फोकस सजा देने से हटकर कंप्लायंस करवाने पर ज्यादा है। और बेसिक ट्रेनिंग के लिए भी कुछ छूट मिली? जी, कंपनियों को ये छूट मिली कि वो बेसिक ट्रेनिंग खुद देने के बजाय किसी मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग प्रोवाइडर BTP से आउटसोर्स कर सकती हैं। और ये थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स TPAs क्या हैं? ये एजेंसियां हैं जो कंपनियों की मदद करती हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चलाने में, सही कैंडिडेट ढूंढने से लेकर कागजी कार्रवाई तक। इन्हें भी मान्यता दी गई। खासकर छोटी कंपनियों के लिए मददगार हो सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वो पोर्टल वाली बात। हाँ, डिजिटलीकरण शायद सबसे बड़े सुधारों में से एक है। अब सब कुछ ऑनलाइन है। अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट जमा करना, रिपोर्ट भेजना, NAS क्लेम करना, सब कुछ। इससे पारदर्शिता बढ़ी होगी और काम तेज हुआ होगा। निश्चित रूप से इससे पूरी प्रक्रिया काफी स्ट्रीमलाइंड हुई है। और हाँ, एक और बात, जो छोटी कंपनियां थीं 4 से 29 कर्मचारी वाली, उन्हें भी अब वैकल्पिक तौर पर अप्रेंटिस रखने की अनुमति मिल गई। इतने सारे सुधार हुए हैं, लचीलापन आया, प्रक्रिया सरल हुई, ऑनलाइन हुई, प्रोत्साहन भी है, तो उम्मीद तो यही होगी कि अब भागीदारी बहुत बढ़ गई होगी। हाँ, उम्मीद तो यही थी। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या चुनौतियां अभी भी हैं? बिल्कुल है, और यही इस कहानी का क्या कहते हैं, विरोधाभास है। इतने सुधारों के बावजूद भारत में अप्रेंटिस की संख्या हमारी इतनी बड़ी वर्कफोर्स के मुकाबले अभी बहुत कम है। कितनी कम? कोई अंदाजा? आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हमारी लेबर फोर्स का सिर्फ लगभग 0.1% ही अप्रेंटिसशिप में है, जबकि कई विकसित देशों में यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है। लक्ष्य क्या रखा जाता है और असल में होता कितना है? लक्ष्य तो हर साल करीब 20 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप देने का रखा जाता है, पर असल में यह आंकड़ा मुश्किल से 3 से 4 लाख प्रतिवर्ष तक ही पहुंच पाता है। तो फासला बहुत बड़ा है। लेकिन ऐसा क्यों है? जब इतने बदलाव किए गए तो भागीदारी इतनी कम क्यों? क्या दिक्कत नियमों में है या कहीं और? दिक्कत कई स्तरों पर है, सिर्फ नियमों की बात नहीं है। एक बड़ी चिंता जो इंडस्ट्री अक्सर जाहिर करती है वो है ट्रेनिंग की क्वालिटी। मतलब जो सिखाया जा रहा है वो इंडस्ट्री के काम का नहीं है। हाँ, या उस स्तर का नहीं है जिसकी जरूरत है। कई बार कहा जाता है कि ITI से निकले युवाओं में वो स्किल नहीं होती, स्किल मिसमैच। पाठ्यक्रम को भी अक्सर पुराना माना जाता है। प्रक्रिया में अभी दिक्कतें हैं ऑनलाइन होने के बावजूद। हाँ, कुछ कंपनियों को अभी लगता है कि NAPS जैसे फायदे लेने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, थोड़ी और सरलता की जरूरत महसूस होती है। और स्टाइपेंड वाला मुद्दा, क्या वो युवाओं को खींच नहीं पा रहा? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्टाइपेंड अक्सर इतना कम होता है कि युवा इसे एक आकर्षक विकल्प नहीं मानते। वो इसे शायद नौकरी पाने का एक जरिया भर मानते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है, वो इसे ट्रेनिंग की तरह कम और किसी तरह उस कंपनी में परमानेंट नौकरी पाने के रास्ते की तरह ज्यादा देखते हैं। स्टाइपेंड कम होने से इसका महत्व शायद कम लगता है। जागरूकता की कमी भी हो सकती है। क्या कंपनियों और युवाओं को इसके फायदों के बारे में पता है? ये भी एक कारण है। दोनों ही तरफ, यानी इंडस्ट्री और युवाओं में, इस योजना के बारे में और इसके फायदों के बारे में पूरी जानकारी की कमी दिखती है। और डेटा, क्या हमारे पास पर्याप्त डेटा है ये समझने के लिए कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं? डेटा की कमी भी एक समस्या है। विश्वसनीय और विस्तृत डेटा न होने से नीतियां बनाना और उनकी प्रगति का सही आकलन करना मुश्किल हो जाता है। राज्यों के स्तर पर भी कुछ दिक्कतें हैं। हाँ, राज्यों में इसे लागू करने के लिए पर्याप्त स्टाफ और संसाधनों की कमी और अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच तालमेल की कमी भी एक बाधा है। तो फिर इन सब चुनौतियों से कैसे निपटा जाए? क्या सुझाव दिए जा रहे हैं? भविष्य की दिशा क्या
होनी चाहिए? सुझाव कई हैं। सबसे पहला तो यही कि नैब्स और पोर्टल को और ज्यादा प्रभावी और यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, प्रक्रियाएं और सरल हों। और पाठ्यक्रम का क्या? पाठ्यक्रम को लगातार इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों और NSQF के साथ अपडेट करते रहना होगा। वो डायनामिक होना चाहिए। छोटे और मझोले उद्योग MSMEs कैसे जुड़ेंगे? वो तो भारत की अर्थव्यवस्था की जान है। उनके लिए शायद और ज्यादा वित्तीय प्रोत्साहन की जरूरत है। और ये जो TPAs हैं, उनकी भूमिका को और मजबूत करना होगा ताकि MSMEs को प्रक्रियात्मक बोझ न लगे। ट्रेनिंग के तरीकों में कोई बदलाव? हाँ, अब जैसे हालात हैं, वर्चुअल या ऑनलाइन ट्रेनिंग के तरीकों को और ज्यादा मान्यता और बढ़ावा देने की बात हो रही है। स्टाइपेंड के बारे में क्या सुझाव है? उसे कम से कम न्यूनतम मजदूरी के करीब लाने और समय समय पर उसकी समीक्षा करने की जरूरत है ताकि वो युवाओं के लिए एक सम्मानजनक विकल्प बन सके। जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में करियर गाइडेंस के जरिए इसे प्रमोट करना होगा। बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने होंगे। डेटा सिस्टम, एक मजबूत डेटा कलेक्शन और मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना होगा। और हाँ, अलग अलग मंत्रालयों जैसे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री के बीच बेहतर तालमेल बहुत जरूरी है। एक और प्रक्रियात्मक सुझाव ये भी आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को सरकार से अप्रूव कराने की बजाय सिर्फ सूचित करने की व्यवस्था हो। मतलब कंपनी सिर्फ जानकारी दे दे कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। इससे क्या होगा? इससे काम तेज हो सकता है क्योंकि अप्रूवल में कई बार देरी हो जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो शिक्षुता अधिनियम 1961 हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और 2014 और 19 के सुधारों ने खासकर वैकल्पिक ट्रेड और डिजिटल पोर्टल के जरिए इसे आज के जमाने के हिसाब से ढालने और इंडस्ट्री के लिए ज्यादा फायदेमंद बनाने की एक अच्छी कोशिश की है। कोशिशें निश्चित रूप से हुई हैं और कुछ अच्छे नतीजे भी दिखे हैं। लेकिन जैसा हमने बात की, चुनौतियां अभी भी काफी बड़ी हैं। भागीदारी कम है, स्टाइपेंड का मुद्दा है, क्वालिटी का सवाल है, प्रक्रियाएं हैं। और वो सबसे जरूरी बात, कानूनी तौर पर अप्रेंटिस एक ट्रेनी है, कर्मचारी नहीं। बिल्कुल, ये अंतर नियोक्ता और प्रशिक्षु दोनों के लिए समझना और मानना जरूरी है। तो अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने को। भारत के पास इतनी बड़ी युवा आबादी है जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। इस क्षमता का पूरा फायदा उठाने के लिए इस अप्रेंटिसशिप सिस्टम को जमीन पर असलियत में और ज्यादा असरदार कैसे बनाया जा सकता है? क्या सिर्फ नियमों में फेरबदल काफी है या फिर जरूरत है कंपनियों की, युवाओं की और समाज की सोच में, जागरूकता में और इसे लागू करने के तरीके में बड़े बदलाव लाने की? इस जरूरी विषय पर इतनी गहराई से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी।